Yes. लोकल सेल्फ को नहीं प्रेसिडेंशियल से कंपेयर किया है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या इन पंचायत, there is no such provision that there will be a parliamentary form of government or cabinet form of government. So there is also a mayor. मेयर कैन बी पावरफुल. मेयर मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी हो सकता है ना उसमें. इसलिए नहीं, हमने पार्लियामेंट्री प्रिस्क्राइब नहीं किया, यानी कि हमारे पास बाकी चीजों के लिए ऑप्शन है. तो ऑब्वियसली हम बहुत उससे धीरे धीरे हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल की ओर चले जाएं, और है भी. अब जैसे दिल्ली में मेयर इलेक्शंस है, उसका इतना इंपॉर्टेंस है, उस सेंस में बता रहे हैं. यस. एनीथिंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? नो. सो नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन and its purposes. So ordinarily constitutions in a democratic country may, irrespective of a form of government, constitutions primarily meant for defining the principles and the organs of government. If it is a democratic country, they can go for fundamental rights also. And the idea of constitutions is a limited government. Government should act with restraint, controlling the governments. But our constitution is not just putting restrictions on the government, it is also putting restrictions on the society and aims at challenging the hidden power structures of Indian society, which may not be according to the values of modern society, like individual dignity, etc. Fine. So now we have to see what all consist of a constitutional order. We have studied constitutionalism. What was the last point we wrote? Uniqueness you have written. ठीक है, ठीक है. तो अब फिर से ऐसे लिखो, एक कॉन्टेक्स्ट में लिखने के लिए लिखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और एरो करके लिखो, टू एस्टैब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मतलब रूल ऑफ लॉ. दिस इज क्लियर. नाउ फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फाइन, what will be the component of the constitutional order or not. जैसे choices दे दें, क्या constitutional order में ये आता है या नहीं आता है. ठीक है. तो you write components of constitutional order. ठीक है. और अपने दिमाग से बताना है. आई एम गिविंग यू सम कंपोनेंट्स, टेल मी दे आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर और नॉट. ठीक है. तो इसमें लिखो, राइट, ऐसे लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स विल फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर. ठीक है. पॉइंट नंबर 1, फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर.
खुद के दिमाग से बताना है। पॉइंट नंबर 1, द रिटन टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन टेक्स्ट में क्या आता है? प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, द स्टैट्यूटरी लॉज। जो रिटन टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सेकेंड, स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉज enforced in the country. Statutory law, you understand? Statute मतलब जो बिल पास्ड बाय लेजिस्लेचर है, ठीक है? तो स्टैट्यूटरी लॉ एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और दूसरा स्टैट्यूटरी लॉ है, ठीक है? तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आर यू क्लियर विद स्टैट्यूटरी वर्ड? स्टैट्यूटरी लॉ। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लिखेंगे एंड दैट इज द रूल्स, बाईलॉज, रेगुलेशंस, बाईलॉज, रेगुलेशंस मेड बाय एग्जीक्यूटिव। फोर्थ, conventions, constitutional conventions. Now, when I say India's constitutional order, whether first is a part of constitutional order, वो तो है ही है. Statutory laws will be regarded as a part of constitutional order. Yes, but what is the reason? Why are you considering statutory law as a part of constitutional order? You know the reasoning? Because only that statutory law can be permitted which is in accordance to the constitution. Fine. Now, rules, regulations made by executive, is it a part of a constitutional order? Yes, because again executive in a country has to make such rules which are in accordance to the constitution. What about conventions? Are conventions the part of constitutional order? Yes. Yes, fine. So we have constitutional law, we have a statutory law, we have a rules, etc., as well as conventions. All are part of the constitutional order. ठीक है? Yes. Yes, good. Conventions are part of the constitutional order because you know which country is the mother of constitutionalism? UK. Fine. UK is a mother of constitutionalism. UK is governed by which system? Conventions. So is conventions formed? Convention is the basis of the constitution of UK. ठीक है? And can any constitution be entirely written or unwritten? No. So conventions are part and parcel of the constitutional order. पहले सुनो. Next is, all conventions are part and parcel? Not necessarily, because conventions are according to the tradition. Some convention may be there, but a constitution can be amended. Convention can changed also. Certain conventions may not. So you can't be saying that all conventions will be part and parcel of the order. Now,
Are conventions legally enforceable in the court of law? No, they are not. In general, they are not legally enforceable when government of the day does not follow the convention. Is it a breach of law by the government? It is not a breach of the law. But is it breach of the trust of the people? It is a breach of the trust of the people. So convention is something to do with political morality. Fine. Whereas the written laws are legal things. Okay. So we have to, now why I am discussing this, we have to understand two things. What are the types of the constitutions? The written constitution and unwritten constitution. Can any constitution be entirely written? No. The unwritten part of the constitution is called as conventions. Fine. But from mains point of view, we should understand, we should know what is the position of Supreme Court with respect to the conventions. Okay. Now tell me, why constitution does not have, when we have already such a detailed constitution, why we have not gone for even making statutory laws? Why statutory laws are not part of the constitution? Everything cannot be written, or in principle constitutions need to tell the details of the system of governance or principles. So constitution gives principles. Other constitutions like US, they have just 7 articles. They go for principles, but our constitution go for detail. But everything you cannot write in detail. So despite having a very detailed constitution, still there is a scope for conventions. Okay. Is everyone understanding conventions and what we are going to analyze? ठीक है, तो अब हम next paragraph, या personal law, so far it is enforced, so far constitution or judiciary is giving judgment and not invalidated. तो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो उसमें सपोज केवल ट्रिपल तलाक को लेके या कॉम्पनसेशन को लेकर के जुडिशरी ने अपना वर्डिक्ट दिया या पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उतना कन्वेंशन फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन रिमेनिंग पर्सनल लॉ भी कन्वेंशन में आ रहा है. जो अनरिटन है वो क्या है? कन्वेंशन है. तो पर्सनल लॉ अगर अनरिटन है तो क्या है? कन्वेंशन है. कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का पार्ट है, पर्सनल लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का पार्ट है. व्हाई दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर? बिकॉज वी डू नॉट हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज नॉट enforceable as such. Is this point clear? स्टैट्यूटरी लॉ जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मीन्स फंडामेंटल लॉ, ठीक है, बट लॉ इज नॉट जस्ट मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो तो फंडामेंटल लॉ है. तो उसके बाद का डे टू डे लॉ बनाने के लिए क्या है? पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, द लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, दे आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी लॉज. अब जैसे कुछ बॉडीज हैं, फॉर एग्जाम्पल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी. बट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशनल. तो हमें क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और क्या मेड बाय लेजिस्लेचर है.
Next, executive also makes laws. In fact, in a parliamentary system, the majority of law is made by executive only. Fine. The role of parliament is just superficial. Okay. So can we call, you know that there are three major branches of government. Legislature's work is to make law. Executive's work is execution of law. And parliament is adjudication of law. ठीक है. But can we say every institution of the government is multifunctional? अगर ये statement आता है prelims में, is executive also make law? Executive also goes for adjudication of laws. ठीक है. तो we should have clarity on this. Later on in political science, you will study, there is one structural functional approach which emphasize on that if you are understanding any institution, look for the multiple type of functions it perform. So executive in India does not perform only executive task. Executive in India also perform quasi judicial task. ठीक है. तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? क्वाजी जुडिशियल. सिमिलरली एग्जीक्यूटिव परफॉर्म्स क्वाजी लेजिस्लेटिव. व्हाट इज ऑर्डिनेंस? द क्वाजी लेजिस्लेटिव. क्वाजी वर्ड उसके लिए यूज करते हैं जब वो मेन इंस्टीट्यूशन के अलावा वाली इंस्टीट्यूशन वो काम करती हैं. तो अभी हमको क्या समझना है? वी विल अंडरस्टैंड टू थिंग्स. Types of the constitution, written and unwritten, and the role of the conventions in Indian political system. Okay. So now the answer for this question will be, सब पे टिक कर दो, all of the above. Yeah. Judiciary, yes. Judiciary तो guardian of the constitution है. Pardon? Judicial? What is the question? फिर से बताओ. Of course, so judiciary तो बताती है what is written in the constitution. कौन? Ordinance भी part of the constitution है. हमने 4 लिखा है क्योंकि 4 से मुझे काम था अभी. ठीक है. तो यस, माइक है. यस, हो सकते इफ दे डू नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन द कन्वेंशन and the written provisions of the constitution, what will prevail? Constitution, because constitution is the supreme law of the land. सोसाइटी सब कुछ आता है लेकिन कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा. ठीक है. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अनटचेबिलिटी है, दैट इज अ कस्टम, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर. ठीक है. तो हमारा अभी का ऑब्जेक्टिव होगा कन्वेंशंस को समझना और उसकी पोजीशन को समझना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर. ठीक है. तो पहले तो अब हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. To write, there are various ways in which constitutions may be classified.
ठीक है, तो एक लिखते हैं जिसको ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, इसलिए अभी लिख लेते हैं प्रोसीजरल वर्सेस प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव ऑब्लिक, प्रिस्क्रिप्टिव का एक और वर्ड होता है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव मतलब which talks about some type of vision that is to be achieved collectively. ओके, प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव ऐसे ब्रैकेट करके उसका मतलब हो गया वेयर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स सम विजन टू बी अचीव्ड, सम विजन, सम गोल टू बी अचीव्ड collectively, prescribes some goal to be achieved collectively. Fine. तो can you call India's constitution prescriptive? ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो इंडिया। और दूसरा हो गया प्रोसीजरल। प्रोसीजरल सिंपल होता है, प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन राइट, इट सिंपली एक्सप्लेन्स A, power and functions of different branches of government. B, fundamental rights. Fine. Example, USA. There is no constitutional vision as such in US because which is to be achieved collectively. Fine. Because they believe in very principle of individualism, minimum government. But in India, that is not a case. So, Indian constitution is essentially a normative document. ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखो, इसी को कल भी लिखा था क्या, ये वाला। ठीक है, तो हमारा एक विजन है, तो जहां पे हम नॉर्मेटिव यूज करते हैं, फाइन, वी हैव अ विजन। फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर देयर इज अ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जब एक विजन होता है, एक गोल होता है, एक वैल्यू सिस्टम ड्राइव कर रहा है, तो इज इट प्योरली प्रोसीजरल थिंग? नो। तो इस पार्ट को हमेशा बोला जाता है सब्सटैंटिव। प्रोसीजरल वर्ड का अपोजिट वर्ड होता है सब्सटैंटिव। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट प्रोसीजरल, ठीक है, उसमें केवल प्रोसीजरल पार्ट नहीं है, इट ऑल्सो हैज द सब्सटैंटिव एलिमेंट। तो जहां नॉर्मेटिव वर्ड यूज किया है वहीं पर हम एक और वर्ड लिखेंगे सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव आया समझ में? तो वर्ड्स का यूज क्या होता है और उसका मीनिंग समझना है। अक्सर दे में आस्क सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, ठीक है। सो हियर ऐसे नोट या ऐसे नोट करके लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिखो, राइट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो प्रोसीजरल मतलब यू कैन टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सारा आइडिया उसमें स्ट्रॉन्ग है, बट दे डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंडियन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स प्रोसीजरल डेमोक्रेसी।
तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के पार्ट लिखो क्या होते हैं. प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ लॉ, ये मेन डिफाइनिंग पार्ट हो गया प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का. अब हाउ रूल ऑफ लॉ इज एस्टैब्लिश्ड इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो ए लिखो सेपरेशन ऑफ पावर्स, बी फंडामेंटल राइट्स, और ब्रैकेट करके दीज टू थिंग्स वी कॉल इट एज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. लिखो राइट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. Why it is important to understand these things? Because now they are asking the questions. I have seen a question in GS that how the concept of equality differs in Indian constitution and US constitution. ठीक है, तो US will go for political equality, fine, whereas India will also try for social and economic equality. Okay, तो ये यूएस को हम किस पैटर्न पर देखते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. दे मे नॉट बी मेकिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. ओके, तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर रहा है. तुमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लिखा. जब हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं देन वी कॉल इट as something based on philosophy of liberalism. हम कह सकते हैं कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज बेस्ड एंटायरली ऑन लिबरलिज्म. ठीक है, इसी में एरो करके आगे लिखो. एक सेकंड, ये पहले लिख लो फिलॉसफी ऑफ लिबरलिज्म. अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है देन लेट मी नो. ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग. फिर मैं बताती जा रही हूं. जब Pol Science में we will do Hannah Arendt. Hannah Arendt will explain the difference in American Revolution and French or Soviet Revolution. तो वो रेवोल्यूशन सोशल एंड इकोनॉमिक थी, ठीक है, और अमेरिकन रेवोल्यूशन पॉलिटिकल राइट्स को स्टैब्लिश करता था. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है जहां वेयर देयर इज अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी you call it as liberalism, liberal state, liberal constitution. Okay, can we use the term procedural democracy, political democracy and liberal democracy interchangeably? Is it clear? इसके लिए एक और वर्ड लिखेंगे, इसका एक प्रिंसिपल लिख दो. ठीक है, लिखो वन मैन वन वोट. हाँ, वन मैन वन वोट. ठीक है, तो द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सब्सटैंटिव कॉन्स्टिट्यूशन या सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी. अंडरलाइन करो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी. ओके, तो दिस टर्म सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, substantive equality, this came from where? This came from socialism actually. ठीक है, अब सोशलिस्ट लोग जो थे, हम वर्ड हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि हाउ दिस इंडस्ट्रियल फिलोसफीज हैव बीन देयर. तो सोशलिस्ट्स वांटेड पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम. ठीक है, तो वो क्या कहते थे कि योर डेमोक्रेसी इज ओनली प्रोसीजरल, ओनली फॉर्मल, फाइन, एंड व्हाट इज सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, वेयर देयर इज नॉट ओनली जस्टिस पॉलिटिकल बट ऑल्सो जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑल्सो. तो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी gaining the real sense, real meaning
when there are also social and economic equality, at least there should not be stark inequalities. This is what is there in the constitution, which talks about equality of status and opportunity. Is this point clear? तो substantive word किस आइडियोलॉजी से हम लिंक कर सकते हैं? सोशलिज्म से. ठीक है, तो इसमें लिखो, राइट, सब्सटैंटिव में लिखो दिस आइडिया कम्स फ्रॉम सोशलिज्म. ठीक है, अब लिखो सोशलिस्ट्स टॉक अबाउट social justice. Underline social justice. Social justice means social and economic equality. Social and economic equality. Fine. सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, एरो करके लिखो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मेन हो गया. टेल मी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम of social justice in India. Social justice in India is synonymous to what? Reservations. ठीक है, because reservation deals with the type of inequality that was existing in India. ठीक है, तो जब भी हम सोशल जस्टिस प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली सबसे बड़ा जो उसका मेथड है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिजर्वेशन पॉलिसी. ठीक है, बिकॉज रिजर्वेशन इन इंडिया डील्स विथ द यूनिक टाइप ऑफ इनइक्वालिटी which was existing in India, which was never a inequality based on achievement, which was an inequality based on birth. Fine. So social justice in India, social justice means social and economic inequality. Maybe if you talk about China, China doesn't have caste system. So in China, social and economic equality can be simply on class basis. But in India, you have to go for caste and class together. ठीक है, कर सकते हैं जेंडर, लेकिन अभी भी हमारा ऐसा कोई जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी का ऐसा प्रोग्राम नहीं है जैसा रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड है. ठीक है, पंचायत में है, वो भी पार्ट है, जेंडर एंड ऑल. ठीक है, लेकिन प्राइमरीली जब हम डिबेट करते हैं देन सोशल जस्टिस वी टॉक इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया. फाइन. सो सोशल इनजस्टिस इन इंडिया is not just on economic criteria. Social injustice in India has also been on caste criteria. Fine. So these two things have been very overlapping. Caste based discrimination and class based discrimination. This overlapping inequality is called by Ambedkar as system of graded inequality. ठीक है, तो फिलहाल हमने लास्ट में क्या लिखा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग कंफ्यूज्ड? यू हैड सम क्वेश्चन इन द बिगिनिंग. यस, जैसे प्रीलिम्स के लिए सब क्लियर रखो, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी. ठीक है, व्हाट इज द लास्ट लाइन वी रोट? लास्ट लाइन बता दो.
एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। फाइन, तो वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी का पार्ट है। ठीक है, इसमें लिखो राइट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 1 man 1 vote 1 value। 1 man 1 vote 1 value। Whose statement is this? Ambedkar। 1 man 1 vote 1 value। ठीक है, this is also called as social and economic democracy, right? Social and economic democracy। Where is this given in the constitution? Primarily DPSP, preamble में तो है ही, लेकिन DPSP, social and economic democracy and fundamental rights, political democracy। ठीक है, तो we believe that the two are complementary। So is American Constitution talks about substantive democracy? It doesn't talk about। Is Chinese Constitution talk about political democracy? No, they don't talk about। India is mixed model। Fine, India has adopted the middle path। It is a mixed model। Our approach is mixed model। Fine, so India adopted socialism, but it was democratic socialism। Fine, and India adopted liberal system of government, but it was welfare state type of a thing। So India adopted both। In Indian Constitution you get procedural democracy as well as substantive democracy। Procedural is a feature of liberal, substantive is a feature of socialist। We have gone for the golden mean। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे लिखो, लिखो राइट। US is an example of political democracy, whereas socialist countries claim themselves to be political democracy। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, whereas socialist countries claim to be social and economic democracy। अब लिखो, what has been the approach of Indian Constitution? What is the approach of Indian Constitution? ठीक है, तो साधारण भाषा में हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड। मिक्स्ड लिख लो। नहीं, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से डिसाइड हो रहा है। वी आर नॉट डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ तो चाइना हैज आल्सो बिकम कैपिटलिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं मिक्स्ड, लेकिन मिक्स्ड का एक बेटर वर्ड है गोल्डन मीन। राइट, गोल्डन मीन। We have adopted the golden mean, good thing। Fine, golden mean। Golden mean, देखो right, golden mean of both liberalism and socialism। ठीक है, अब इसी में लिखो, what is a good thing in liberalism? Good thing in liberalism is liberty। They give liberty to the people, but they compromise
equality. कॉम्प्रोमाइज इक्वालिटी, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में इक्वालिटी नहीं होती है उस टाइप से। फिर अब नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज गुड थिंग इन सोशलिज्म। लिखो इक्वालिटी, बट दे कॉम्प्रोमाइज लिबर्टी। यहां से अच्छी चीज उठा ली और वहां से अच्छी चीज उठा ली, ठीक है। तो हमारी ये कैरेक्टर रहा है इंडिया का, जहां से भी अच्छी चीज होती है हम उठा लेते हैं। दैट इज अ रीजन फॉर द रिचनेस ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। फाइन, सो वी, दैट इज अ रीजन। इंडिया का माइंडसेट क्या है? प्लूरलिस्टिक है। वी नेवर हैव अ प्रॉब्लम इन accepting the things which may appear very contradictory, but that is a national culture of India, that we have been born and brought up in such things where we have always gone for accommodation, pluralism, toleration. Fine, तो इसीलिए शाहरुख खान का गाना भी है, it happens only in India. Fine. So why? Because our culture is unique. Our culture, we always believe that एकम सत्यम बहुधा विभंति, कुछ है ना, मोदी जी कहते हैं वदंती, means we believe that there can be different paths for the attainment of righteousness or attainment of good. So golden mean का मतलब हुआ एवरेज, दोनों का अच्छी चीज लेना और दोनों का नेगेटिव चीज हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो इसी के लिए हम एक चीज लिखेंगे, thus इंडिया एडॉप्टेड वेलफेयर स्टेट रादर देन लिबरलिज्म। में दो स्टेट के मॉडल्स होते हैं, इंडिया एडॉप्टेड वेलफेयर स्टेट रादर देन लेसेस फेयर स्टेट। ठीक है, एंड सिमिलरली राइट, इंडिया एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म rather than revolutionary, violent, overnight approach. Rather than revolutionary, violent, immediate, overnight approach. So we want to move towards, लिखो राइट, वी वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स सोशलिज्म ग्रेजुअली। वी वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स सोशलिज्म ग्रेजुअली। अब एक क्वेश्चन आपका था, क्या क्वेश्चन? फॉर्मल, हाँ, इक्वालिटी इज एसेंशियल फॉर डिग्निटी। डिग्निटी इज अ कंपोजिट वैल्यू। फॉर लिविंग अ डिग्निटी यू रिक्वायर इक्वालिटी, बट यू ऑल्सो रिक्वायर लिबर्टी। ठीक है, तो वो तो सबसे मतलब ऐसे फाउंडेशनल वैल्यू मानी जाती है जिससे सारी वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, लेसेस फेयर स्टेट इज which does not intervene in economy, which does not provide social security, which is not there, जैसे जो गवर्नमेंट के फ्री बीज हैं, अगर लेसेस फेयर स्टेट में नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन जो वेलफेयर स्टेट में यू गो फॉर हेल्पिंग द पुअर्स। ठीक है, तो आप बताओ लिबरलिज्म में
कौन सा आइडियल इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी और इक्वालिटी? लिबर्टी। और सोशलिज्म में इक्वालिटी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है? व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डू वी गिव प्रायोरिटी टू लिबर्टी और वी गिव प्रायोरिटी टू इक्वालिटी? इक्वालिटी, बोथ। ठीक है, लिखो इसमें, एक का नहीं, ठीक है, ऐसे लिखो, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? with respect to these एक वर्ड ऐड करेंगे, seemingly, मतलब जो समझा जाता है ऑफन, नहीं आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन विद रेस्पेक्ट टू seemingly contradictory values of liberty and equality. ठीक है, तो this can be a question even in your ethics paper. ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन करते बता रही हूँ ना, वो अपनी डायरी में एक लिस्ट करते जाना। तो हाउ टू स्ट्रक्चर दोस क्वेश्चंस आई विल टेल लेटर। ठीक है, तो seemingly contradictory, you understanding? Seemingly they are actually not contradictory but they are projected to be so. ठीक है, तो यहां पे इसका इन आंसर यू राइट व्यूज ऑफ अंबेडकर, और ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, व्यूज ऑफ अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर के हिसाब से पॉइंट नंबर 1, पहला सिंपल वाला बता रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 राइट, लिखो राइट, फॉर अंबेडकर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी means one man, one vote. Fine. Without social and economic. Political democracy without social and economic is a contradiction. And economic is a contradiction. तो सोशल एंड इकोनॉमिक मतलब वैल्यू भी आपका समाज में, आपका स्टेटस, आपका इंपॉर्टेंस, आपका वैल्यू, ये भी समान होना चाहिए। ठीक है, आप सेकेंड पॉइंट लिखो। ठीक है, तो लिखो राइट, अंबेडकर बिलीव्ड इन the trinity of liberty, equality and fraternity. ठीक है, लिखो ये, इट इज अ गोल्डन ट्राइंगल, liberty, equality and fraternity. ठीक है, one cannot be achieved without the other. इसलिए एक और क्वेश्चन ऐड करो अपनी लिस्ट में, डायरी में क्वेश्चन लिखते रहा करो वैसे तो, जैसे कि क्वेश्चन ये है, establish the interdependence between liberty, equality and fraternity. Interdependence between
लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आसान सा क्वेश्चन है, छोटे बच्चों वाला है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब हुआ भाईचारा। इसमें बहनचारा भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहनचारा, भाईचारा दोनों आते हैं इसमें, ठीक है। फ्रेटर्निटी, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में बचपन से पढ़ रहे होगे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सुना तो होगा ये वर्ड। तुमको लग रहा है कि दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड और दे आर अपोजिट टू ईच अदर, but can you write a paragraph on this? So you try today, tomorrow, कि इतनी छोटी, इतना तो कोई 6 क्लास का बच्चा लिख लेगा। अपने घर में अगर कोई हो ना आस पड़ोस में, बच्चे को बोलना हो लिख के ले आएगा। It's not that easy, it's not that difficult. You can write, can there be liberty without equality? If there is a liberty without equality, it will be a privilege. Fine. Some will have liberty, others will not have liberty. And can there be equality without liberty? No, there cannot be equality, because the objective of equality is what? Every person should be in a position to enjoy equal amount of freedom. ठीक है, तो पेडेस्टल में फिर इक्वालिटी आ जाती है, वरना फिर इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रीडम होगा ही नहीं, ठीक है। बट इन दोनों का रिलेशन क्या है? विथ फ्रेटर्निटी, विदाउट द फीलिंग, दोज हु हैव लिबर्टी, don't you think they have to compromise with some of their liberty to possess money? तो ये जो कॉम्प्रोमाइज की फीलिंग कहां से आएगी? फ्रेटर्निटी से, ठीक है। और जिनके पास इक्वालिटी, मान लो इक्वालिटी जिनका कंसर्न है, तो गिविंग पीपल अपॉर्चुनिटी टू make money or have a liberty, you need a compromise. This thing has to be based on the value of fraternity. Without fraternity, this is not possible. Without fraternity, is it possible that rich and poor coexist? No. Without feeling of fraternity, is it possible that different religious communities coexist? No. Which idea is the foundation of nation? Solidarity या fraternity? So fraternity is required for nation, but can there be a fraternity without liberty, equality? No. So is fraternity, or you can say is unity and integrity of the nation and the dignity of the individual, are they interlinked? ठीक है, तुमको लग रहा है क्वेश्चन लिख लोगे? ट्राई तो करना ही पड़ेगा, और क्या क्या क्वेश्चन क्या था हमारा? बिटवीन द 3 वैल्यूज। एक और लिखो क्वेश्चन इसमें, how integrity of nation is complementary to dignity of individual. Which comes first in the preamble? Unity. Unity and integrity पहले, dignity बाद में। इसलिए मोदी जी पहले यूनिटी करवा रहे, डिग्निटी देखी जाएगी। लेकिन उनको पता है कि दोनों चीजें चाहिए, इसीलिए एक
ट्रेन चलाई है श्रेष्ठ भारत की, ठीक है। तो वो यूनिटी इंटेग्रिटी को मिला के चल रहा है सब सिस्टम। यस, फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। जो आपका भाई नहीं है उसको भी भाई मानना है। क्यों मानना है भाई जब वो भाई है ही नहीं? क्योंकि आपको उसकी गरिमा यानी डिग्निटी का सम्मान करना है। मान लो तुम हो ब्राह्मण और ये है शेड्यूल्ड कास्ट, तो इनको तुमको भाई मानना पड़ेगा। क्या बेसिस है? तुम्हारे परिवार के तो है नहीं, तो बेसिस क्या है कि वो इंसान है, ह्यूमन है। और द कैटेगोरिकल इंपैरेटिव गिवन बाय इमैनुअल कांट व्हिच यू विल स्टडी इन एथिक्स, द फंडामेंटल वैल्यू इज डिग्निटी। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कोई और संबंध ना भी रखे, बट इतना संबंध रखना पड़ेगा, कौन सा? इंसानियत। ठीक है, तो इंसानियत मतलब ह्यूमन वैल्यू, विच वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन डिग्निटी। अब थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ये दोनों क्वेश्चन दिल से लिखे, आपके देश से ही है, आपके प्रियम्बल से है, ठीक है। चलिए फाइन। तो फिलहाल प्रिस्क्रिप्टिव एंड सब्सटैंटिव कॉन्स्टिट्यूशन, सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, और थोड़ा ये सब वर्ड्स घर वालों के साथ बोलो, दोस्तों के साथ बोलो, थोड़ा उनको कॉम्प्लेक्स दो, ठीक है। वी डोंट हैव सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, ऐसे थोड़ा अमेरिकन, यू शुड फील गुड एंड ट्राई टू प्रोजेक्ट इट, ठीक है। दूसरों को देखो कि कैन यू पुट देम अंडर टेंशन और नॉट, हाँ करा करो, उनको थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश करो, इट गिव्स गुड फीलिंग, करना चाहिए। उससे क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुम अपने लिए ही कर रहे हो लेकिन दूसरे को देखो तुम डोमिनेट, यही सोशल इंटेलिजेंस है, हाँ यही तो है सोशल इंटेलिजेंस, कि तुमने किसी को डोमिनेट करने की कोशिश की लेकिन उसको समझ नहीं आया, उल्टा वो तुम्हारे लिए रेस्पेक्ट का भाव डेवलप कर गया कि भाई ये इंसान तो बढ़िया है, अपने से ऊपर है, ही डिजर्व्स माय रेस्पेक्ट, ठीक है, इसके साथ रह, मतलब ऐसे थोड़ा सी कैन यू इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। चलो, सो नाउ कम टू द मेन पॉइंट which we wanted to discuss is types of constitutions. There are various ways, procedural, substantive. The next is written and unwritten. Look, types of constitution में written and unwritten. फिर लिखो, क्वेश्चन लिखो, select the correct statements. First statement, no constitution is entirely written or entirely unwritten. Is it correct? किसी को गलत लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट। द डिफरेंस बिटवीन द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन is only of degree and not that of kind, not of kind.
इज दिस स्टेटमेंट क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? ऐसे जबरदस्ती नहीं बोलना है तो, हाँ नहीं है तो क्यों नहीं बोल रहे? हमें पता है जो नहीं पता होगा, ठीक है। डिग्री एंड काइंड, ठीक है, इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट। थोड़ा जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो थोड़ा समझना चालू करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो थोड़ा, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है नॉट कंप्लीट, और काइंड मतलब सम डिफरेंट काइंड, डिफरेंट टाइप, काइंड टाइप, कोई अलग तरीके का ही कुछ हो। तो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग चीजें नहीं है, काइंड, ठीक है, बट इट इज अ डिफरेंस ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस है, ठीक है। इट कैन बी 70% रिटन, 30% अनरिटन, समथिंग कैन बी 90% रिटन एंड 10% अनरिटन, ठीक है। तो डिफरेंस, डिग्री का डिफरेंस का मतलब होता है क्वांटिटेटिव डिफरेंस, क्वांटिटी में, मात्रा में, कम या ज्यादा, ठीक है, यानी कि कैरेक्टर में पूरा डिफरेंस नहीं। इज दैट क्लियर? एंड डिफरेंस ऑफ काइंड मींस ऑल टुगेदर डिफरेंट, ओके। तो काइंड मतलब कोई अलग वैरायटी का व्यक्ति, कोई अलग जाति प्रजाति, ठीक है। तो वो डिफरेंस ऑफ डिग्री। तो इज आर द टू स्टेटमेंट, अगर दीज टू स्टेटमेंट्स हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ assertion and reasoning, do they act like that? One is a assertion, other can be a reason. Fine. So now you have understood. It is a difference of a degree rather than difference of a kind. ठीक है. Now tell me the attitude of the the attitude of Indian and Chinese. Is it a difference of degree or a kind? Kind हो सकता है, तुमको लग रहा है कि बहुत बड़ा अंतर है। चलो, attitude of Indian and Bangladeshi, it can be a degree, कुछ फर्क होगा, ठीक है। अब बताओ, बिहार और यूपी में डिफरेंस ऑफ डिग्री है कि काइंड? डिग्री है। और बिहार और तमिलनाडु में काइंड है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूरी है, डिस्टेंस ज्यादा है। समझ में आया? काइंड, इट्स अबाउट, इट इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव। जैसे बिहार, फ्रॉम बिहार टू यूपी you can go easily by road or by train, but you have to normally get a different kind of transport. You will prefer air transport if you go, तो वो कुछ अलग ही चीज। Is that clear? Quantity जो भी है, मतलब समझ लो, मतलब difference of degree and kind, ठीक है। तो they don't differ from each other, but it is simply how much written part and how much unwritten part, okay। फिर अब नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं लिखो, सिंपल लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। लिखो, राइट, a written constitution is the product of constituent assembly or some special body ठीक है। एक ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो अभी इसी में हम लिख सकते हैं, एरो करके लिखो, कंपैरिजन समझो,
You all know that British Constitution is unwritten. ठीक है, तो एरो करके लिखो, लिखो राइट, दो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन also has unwritten parts, sorry, written parts, also has written parts. ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आई डोंट रिमेंबर ईयर, कुछ 1777 समथिंग, या कॉमा, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005, by which they have created Supreme Court, Constitution Reform Act, ब्रैकेट क्लोज कर दो, yet it is not called written because it has not been produced by, it has not been produced by calling a special body or a convention at a particular point of time. ये भी इंपॉर्टेंट है, at a particular point of time. ठीक है, तो दो चीजें हैं, हर, और हम डिग्री में बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉलिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बी 90%, 80%, बाकी तो इवॉल्व होगा। तो ब्रिटेन को रिटन क्यों नहीं कहते? तो ये माना गया कि इट वॉज नॉट रिटन एट अ एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड नो स्पेशल कन्वेंशन वॉज एवर कॉल्ड। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस, रिटन एंड unwritten constitutions. Fine. So now just write what are conventions. In a case where somebody has been called to write the constitution, however, the amount of constitution written at that time of, हाँ, ये माना गया है, अमाउंट से नहीं, कि if a constituent assembly has been called and at one point of time the constitution is produced. Degree, because it's a valid question. If you see American constitution, it is called first written, but it has just 7 articles. Okay, so why America is called so? Because the constitution is written at a time by a special convention. French constitution was not written by any special constituent assembly but a cabinet committee, but that's fine, written by a special body at a time. These two things technically called as written constitution. Fine. हाँ हाँ, उनका तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, थियोक्रेटिक स्टेट में तो इट इज अ डिक्टेटरशिप जहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही नहीं है, नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इग्नोर देम। थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में डेमोक्रेसी नहीं होती, फिर तो वो थियोक्रेसी है। ठीक है, तो वो उस कैटेगरी का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, डेमोक्रेटिक ही कर रहे हैं। तो 2 criteria at a time, but there is always that you can't write everything at a time, and by a special body. ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, what are conventions, comma, what is the legal status of conventions in a country
with a written constitution like India. ठीक है, तो whenever you will have to write in polity about the constitutional, you will have to write with reference to the Supreme Court judgment. Fine, because what is there in the constitution, judiciary interprets it. Okay, तो आंसर में वो होना चाहिए आपका रेफरेंस टू जुडिशरी लिखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कन्वेंशन एंड व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ कन्वेंशंस. ठीक है, तो अब इसका आंसर लिखो. लिखो, राइट, कन्वेंशंस आर unwritten rules. So what can be the other word for it? Fine. The other word is called as maxim. Unwritten rule or maxim. Maxim का मीनिंग लिखो, as good as law. As good as law. It is not a law, but people consider it as good as law. ये maxim है. ठीक है, जैसे in international politics, balance of power is not a written law, but it is as good as law. Okay, maxim, you call it as maxim. Fine. So conventions are unwritten rules. Fine, or maxims, because they are religiously followed. Fine, they are based on traditions, but they are religiously followed, and normally any government will have lot of reluctance or hesitation in not following the convention or in breaking the convention. Is this point clear? What are conventions? Unwritten rules or maxims. ठीक है, तो अंडरलाइन करो maxims. लिखो, राइट, they are considered as maxims because they are religiously followed. तो religiously followed मतलब not out of the fear of God. भगवान से डरो, गलत काम, मतलब मोरालिटी है. religiously followed का मतलब है, ब्रैकेट में लिख दो, where the check is morality. Morality is a check, not law. आप एक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं भाई, जैसे प्रेसिडेंट है तो उसकी कुछ भी स्टेटस नहीं, लेकिन फिर भी एक कन्वेंशन के नाते मोदी जी खड़े होते हैं कि प्रेसिडेंट आए, तो वो क्या है, रिलीजियसली फॉलो. रिलीजियसली मतलब नैतिकता के नाते, out of sense of morality. If PM doesn't pay, is it written in the constitution that PM has to say hi, hello to the president? No, but he does it. क्योंकि he is a religious person. He is known for his morality, gentleness, kindness. ठीक है, तो जो ऐसा अच्छा व्यक्ति होता है, मोरालिटी वाला, जेंटल, काइंड, वो क्या करता है, वो प्रथाओं को, ठीक है, कन्वेंशंस, दे फॉलो ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस. ठीक है, यू फॉलो रिलीजियसली, बिकॉज रिलीजियसली मीन्स गॉड से डर रहे आप, सुप्रीम कोर्ट से नहीं डर रहे,
सुप्रीम कोर्ट से क्या डरना है? ठीक है, तो भगवान से डरना है। ठीक है, भगवान के कारण ही तो पावर में आए। ठीक है, तो इतना हक तो रामचंद्र जी का भी बनता है कि थोड़ा बहुत नैतिकता। चलिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मैक्सिम का मतलब हुआ विच यू फॉलो, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम नाउ। नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो हमारा लीगल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। मतलब अगर जुडिशरी डजंट अप्लाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ in case of violation of natural justice, then judiciary is not fulfilling its constitutional duty. But ऐसी चीज which is not imposed on the basis of constitution, you will not be punished. Fine. Then it is called as convention. Convention is morality, political morality. Why? Because political morality matlab why I am following the convention? Out of morality, because I am a social person, I live in a society, I care about the opinions of others, how they will feel about it. तो प्रेशर कन्वेंशन पर, प्रेशर कहां से आ रहा है? सोसाइटी का प्रेशर है, मोरालिटी है, तो उसको पॉलिटिकल मोरालिटी बोलते हैं। नैतिकता के नाते आप बात कर रहे हो। Okay, I hope you are not confused between due process of law and convention. Is due process of law a convention? No, it is an established legal principle. Okay, so if due process, if executive does not follow due process of law, आप SP हैं, आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया, जिसको 2 थप्पड़ मारने थे उसके 50 लगाए, ठीक है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है? रिट ऑफ मैंडेमस, कि भाई 2 ही मारने थे, ठीक है, इतना नहीं मारना था, तो ये आपने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं की। ठीक है, तो ये आपको 18 ही मारने थे, 20 नहीं मारने थे। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो वो तो आप पनिशेबल है, that will become punishable. But morality क्या है? आप DSP SP के भाई मतलब बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो मोरालिटी के नाते आप भाभी जी और बच्चों को ले जाएंगे, उसके लिए कोई लीगल बेसिस थोड़ी बनता है आपको पनिश ना करने का या करने का। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनरिटन रूल्स, मैक्सिम्स, बट they have a very important role because they provide the flesh and blood. Without convention, systems cannot work. So they are a very important part of the constitutional order. Got it? Likho abhi. What is the last line? They are religiously observed. Religiously observed इसका मतलब लिखो, it means it is never easy for the government not to observe conventions. For the fear of public criticism. For the fear of public, नहीं ठीक है, तो it means लिखो, राइट, it means conventions have their own weight, WEIGHT, weight in any countries
any country's constitutional order. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, राइट, दस कन्वेंशंस रिप्रेजेंट those traditions, customs which are ordinarily observed, comma, in running day-to-day administration. फिर लिखो राइट, इट इज सेड दैट constitutions create a skeleton, comma, and constitutions create a skeleton, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देता है, and conventions add flesh and blood. फ्लैश एंड ब्लड, हार्ड मास, ठीक है, तो खून है क्या? एक्ट्स कैसे कन्वेंशन? वो तो लॉ है, जो लीगली इनफोर्सिएबल है वो लॉ है, जो लीगली इनफोर्सिएबल नहीं है वो कन्वेंशन है, ठीक है। तो अगर कन्वेंशंस नहीं होंगे तो सिस्टम नहीं चल पाएगा, लेकिन अब सारी चीजें कोई लिख पाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे बॉस के साथ कैसे चल पाएगा अगर उसकी वाइफ और बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाओगे? चलेगा? नहीं चलेगा। तो अब ये तुम कहो सर ये किस किताब में लिखा है, तो सर क्या बोलेंगे? भाई इसीलिए तो एथिक्स का पेपर जुड़वाया था, ठीक है, नकल करके आए हो, सेंटर कहाँ था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि जिसके लिए सोशल सैंक्शन है, नॉट लीगल सैंक्शन, बट दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम. सिस्टम में नॉट फंक्शन, ठीक है। या फंडामेंटल ड्यूटीज कन्वेंशंस नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज तो वैसे ही नहीं फॉलो हो रहे, कन्वेंशंस वो होते हैं जिसके लिए आप फॉलो करते हो, जो आपकी रोजमर्रा की आदत है, ठीक है। जैसे हम तुम लोग को रोज आके गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नहीं भी बोलेंगे तो भी तो क्लास स्टार्ट हो सकता है, लेकिन नैतिकता के नाते हम बोल रहे हैं। किसी डायरी में या तुम्हारी फीस रिसीट में ऐसे दिया है कि मैम बोलेंगी, अब जिस दिन ना बोले तो फीस वापस ले लेना, अगर नहीं तो ऐसे कुछ नहीं, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो चीजों को इनफॉर्मल प्रोसेस, अदरवाइज द वर्क में नॉट स्टार्ट, एंड आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। कुछ लोगों को तो गुड मॉर्निंग ही अच्छा लगता होगा, बाकी तो सुनते नहीं, सो जाते, ठीक है। क्लास है जैसे अभी देख रहे थे कुछ लोग, अब यही है, इट्स अ बट देयर इज नो सैंक्शन ऑन मी इफ आई डू नॉट ग्रीट यू, फाइन। तो खड़े होना या बैठना, तो वो क्या है, इट इज आउट ऑफ मोरालिटी, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी कन्वेंशन एट द रियल फ्लैश एंड ब्लड, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, ब्रैकेट में लिखो, राइट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन is primarily based on conventions.
and that is why it is called as the product of what? देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में wisdom and chance. Wisdom and chance. तो wise person is not dependent on laws. Wise person will act with morality on its own. It's a product of wisdom and chance. It's chance factor that something happened. It was a chance that Queen stopped participating in Parliament. Then it became a convention, and it reflects the wisdom on the part of the Queen also. Okay, so wisdom and chance show the role of conventions. Fine. And you can write, लिखो, write, normally there is a greater role of conventions in unwritten constitutions. Okay. Up, लिखो, write, what is the status of conventions? What is the status? Yeah. Indian are more prone to नहीं, कल्चर का कोई रोल नहीं, मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें कोई रोल नहीं. ठीक है. और उस सेंस में तो वी डोंट फॉलो द कन्वेंशंस. व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी अमेंडेड? Because nobody was following the conventions of parliamentary system. The convention of parliamentary system was president should act on the aid and advice, but president was trying to act on its own. So, तो इंडिया में तो उल्टा बैठ गया. ठीक है, तो हमारा कल्चर डेमोक्रेटिक नहीं था पॉलिटिकल सिस्टम का. ठीक है, तो नो लिंक. Model code of conduct is a convention, which is, if you not follow, there are no legal sanctions, then it is a convention. अगर legal sanctions नहीं है तो वो convention है. DPSP तो क्या है? DPSP convention नहीं है. DPSP कोई tradition है. DPSP is a part of the constitution, where constitution itself said that you don't have to enforce. तो conventions का character क्या है? Unwritten rules. That is also you have to see. ठीक है. तो why DPSP is not a convention? Because it is written. ठीक है. It is clear. लिख लो, भूल जाओगे या नोट करके लिख लो. है डेफिनेशन याद रखो. Unwritten rules. तो लिखो, why DPSP is not a convention, despite why DPSP or fundamental duties is not a convention, despite not being enforceable. Write answer on your own. You know the answer? लिखो, right, because conventions are unwritten rules. Model code of conduct, unwritten rules, yes. लेकिन अब उसमें इलेक्शन कमीशन किसी किसी में वो पावर भी है जहां पनिशमेंट नहीं हो रहा. ठीक है. और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
कन्वेंशन नहीं है, वो तो फिर रिटन है. दैट इज अ रिटन रूल. कन्वेंशंस आर अनरिटन रूल. Legally enforceable is not the first criteria to establish convention. Written and unwritten is the first criteria. ठीक है, दोनों में. एक और भी इसमें नोट करो प्रीलिम्स के लिए. लीगल इन्फोर्सिएबिलिटी इज नॉट, लिखो, लीगल इन्फोर्सिएबिलिटी इज नॉट द फॉरमोस्ट क्राइटेरिया. The foremost criteria, rather unwritten rules is the foremost criteria. आ रहा है समझ में? ठीक है. अब ये फॉरमोस्ट क्राइटेरिया क्यों नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखो. लिखो इसका एक्सप्लेनेशन. इसका एक्सप्लेनेशन ये है. पहला एक एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट कन्वेंशंस, दो नॉट इन्फोर्सेबल. किसी को समझाना है समझा सकते हो. ठीक है, आज जाके रूममेट को कंफ्यूज करना है. ठीक है, इससे यही सब क्वेश्चन पूछने हैं और अपने थोड़ा अच्छा फील करना है. नहीं, ऐसे कोशिश करो ना थोड़ा. अब सेकंड है कि देयर आर सम कन्वेंशंस. लिखो, राइट, देयर आर सम कन्वेंशंस विच आर treated by the courts as legally enforceable. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अर्लियर, president not acting on the advice, you could have sued the president, but president is exempted. ठीक है, but you can establish that this was the wrong conduct. Okay, तो court, because you can't write everything, and conventions help in understanding what exactly is the provision of the constitution. Fine, so at times judiciary give them a status of legally established principle also. So enforceability is not the main criteria. What is the main criteria? Unwritten rules. Because for some time to understand, for example, under anti-defection law, speaker's decision was correct or not. So it is simply a convention that speaker has to be neutral. But Supreme Court has interpreted, used convention to declare this action was wrong. Is that clear? So at times, इसलिए conventions are also important aid to understand the exact idea behind a particular provision of the constitution. आया समझ में? इसमें एक लिखो, व्यूज ऑफ अंबेडकर ऑन कन्वेंशंस. स्पीकर का बताया तो, स्पीकर से कोई कहीं लिखा है न्यूट्रल रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये एक मोरालिटी है कि यू हैव टू बी न्यूट्रल. तो इफ स्पीकर इज नॉट न्यूट्रल एंड गिव्स व्हाटएवर डिसीजन, so Supreme Court ideally should not say anything, but Supreme Court will nullify the decision of a speaker. You can call it judicial activism. ठीक है, but isn't not a judicial activism that Supreme Court is giving legal enforceable status to conventions? अगर सुप्रीम कोर्ट किसी कन्वेंशन को इक्विवेलेंट ट्रीट कर रहा है एज अ रिटन प्रोविजन, तो दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म. ठीक है, तो वो भी एक पार्ट है, आप उस बेसिस पे डिस्कस कर सकते हैं. इसलिए कन्वेंशन में बिना कंफ्यूजन ये समझना इंपॉर्टेंट है, दे आर अनरिटन रूल्स.
कोई डिफरेंस नहीं, कस्टम, ट्रेडिशन, कन्वेंशन, रीति रिवाज, प्रथा, वो एक ही चीज। जुडिशियल ओवररीच मतलब which you think is wrong, and judicial activism is which you think is okay. So that you will understand later. Now convention issue is clear. Fine. Unwritten पकड़ लो, वही मेन है, ठीक है। अब हम लिखते हैं व्यूज ऑफ अंबेडकर। पॉइंट नंबर 1, constitutions are expected to give general principles of governance. Okay. Second point, इसी चीज को आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिफरेंट वे फॉर योर क्लैरिटी, अदरवाइज इट वाज इनफ। तो कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिटन फॉर जनरल प्रिंसिपल्स, किसी भी देश के गवर्नेंस के जनरल प्रिंसिपल्स तो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, लेकिन बाकी कम्स बाय लॉ, बाय कन्वेंशंस एक्सेट्रा। तो कॉन्स्टिट्यूशंस आर गिविंग ओनली जनरल प्रिंसिपल्स। ओके, second point, right? We cannot write the finest of all details. Is it humanly possible? No. Finest of all details. It is not possible. तो very pragmatic approach. अंडरलाइन करो फाइनेस्ट या फाइन डिटेल्स, लिखो डिटेल्स या गिविंग डिटेल्ड व्यू इज अ वर्क ऑफ पार्लियामेंट। गिविंग डिटेल्ड व्यू इज अ वर्क ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन दे शुड राइट इट, ठीक है। अब लिखो राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, दस व्हाट इज सेकेंडरी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्राइमरी। What is a primary work of a constituent assembly? Principles or detail? Principles, ठीक है। And what is secondary cannot be given as primary, ठीक है। इसी में इनका एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो राइट, if we will try to treat secondary as primary, what is secondary? Detailing. If we'll treat secondary as primary, comma, we will be lost in the forest of details. Hopefully you have not understood. ये स्टाइल है, ये बस स्टाइल है कि फॉरेस्ट ऑफ डिटेल में फिर आप इतना घुस जाओगे कि उससे निकल ही नहीं पाओगे, फिर तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्क ही नहीं खत्म होगा कभी, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग। डिस्पाइट दिस वी हैव वेरी डिटेल्ड प्रोविजंस। ओके, व्हाई वी हैव द डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, because there were different political ideologies, people having different political ideologies, people having different, coming from different caste, communities, etc. Fine. So in future also, if things have not been given in this much detail,
it would have been very difficult and everything would have been subjected to conflicting interpretations. So in other countries, you don't require such a detailed constitution because there have been no so much ideological differences. But in India, not just ideological differences, caste, community, language, we would have been fighting on everything the way we fight now. ठीक है, तो कलर पे जहां झगड़ा हो सकता है, such a elaborate constitution, though it is not a norm, is because Indian politics has always been very vibrant politics. Even before independence or after independence, there have been people from different ideologies. Within the Congress itself, there were people from different ideologies. So if there had not been some very fixed ideas, you can't move left and right, at least in terms of federalism, at least in terms of certain rights, it would not have been practically possible. And then bureaucracy and all, they would have dominated the politicians. So they have written, but still you can't write everything. Fine. Even they missed the very simplest thing in Article 74, that President shall act on the aid and advice. Otherwise, if you'll go into detail, you will be lost in the forest of details. Okay? तो ये डायलॉग याद रखना इंटरव्यू के लिए, अगर कभी पूछेंगे तो ऐसे बोलना है, जिससे वो फिर पूछे इसको समझाइए क्या है. तो तुमने क्या कर लिया, क्वेश्चन बजाय इंटरव्यू वाले ने दिया, अपने से ही दे रहे हो क्वेश्चन. ठीक है, और ये इंप्रेशन क्रिएट करने वाली हैबिट अभी से डालो. मतलब ये इट शुड कम फ्लॉलेसली, एफर्टलेसली. तुम्हारी बात ही ऐसे होनी चाहिए हमेशा. ठीक है, आज इसे अपने को कलेक्टर समझ के ही दूसरे से बात करनी है. जब वो ईगो रखोगे, उस लेवल का ही अपना एक स्टैंडर्ड बना लोगे, उससे कम में फिर चैन नहीं मिलेगा. तो वो अपने आप मोटिवेट करेगा तुम्हें कि इससे कम में तो मैं जी नहीं पाऊंगा, कि इतने लोग मेरी बात नहीं सुन रहे. ठीक है, वो हैबिट डालो वाली. इफ यू डेवलप अ हैबिट ऑफ अ किंग, यू विल बिकम किंग. ठीक है, बिकॉज दैट ड्राइव विल बी देयर इन यू. इससे बिना तो मेरा काम ही नहीं चलना. ओके, so anyway, have you understood these things about conventions? So now we have to see how Supreme Court, what is Supreme Court's view on conventions. पहले ऐसे लिखो, एक लिखो, right? 10 ऐसे लिखो, 10 the general principle is they are supposed to be substantially important, comma, moral backbone of constitutional order, moral backbone of constitutional order, yet not ordinarily enforceable. Not ordinarily enforceable. सुप्रीम कोर्ट के मूड पर है. अब मूड वाला काम हो जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म. ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल से चलेंगे तो जो कन्वेंशन भी ये कहता है कि जुडिशरी ये सब काम ना करे. ठीक है, तो अब लिखो, राइट, टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ कन्वेंशंस, to understand the status of conventions, we can give reference to the following judgments of Supreme Court. To understand the status of conventions,
we can give reference to the following judgments of Supreme Court. फर्स्ट लिखो, राइट, फर्स्ट जजमेंट में लिखो, और केस है फर्स्ट जजेस केस, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982. एसपी गुप्ता को ही फर्स्ट जजेस केस कहते हैं. इट इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बट वो अभी हमारा बस पर्पस नहीं है. तो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982. ओके, तो फॉर क्लैरिटी इसमें ऐसे लिख लो, व्हाट वाज द क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू द कन्वेंशंस. What was the question with respect to the convention? ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, कैन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर any convention as unconstitutional? Or is it essential to follow the conventions? मतलब कन्वेंशन को फॉलो करते रहना है या कन्वेंशंस हटाई भी जा सकती हैं. ठीक है, तो इसमें यह है कि इफ कन्वेंशंस आर इन हार्मनी विथ द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, with the principle of the constitution, they will continue. But if some convention is against the fundamental ideas, then these conventions need not to be observed. Fine. Matlab, suppose there is some convention that PM has to respect or stand in respect, etc. Or convention may be there that motion of thanks has to be presented or answered. So if PM has not followed it, can PM be punished? So idea is conventions are important, but if any convention contradicting to the principles, then remove those conventions. या इसके लिए हम बेस्ट एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा ये लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक. ठीक है, इट इज अ अनरिटन रूल and it's a convention, but you can remove it. Fine. Courts are not bound by the Muslim personal laws in that context because they may contradict with some very fundamental features of the constitution like gender equality. ठीक है, इस सेंस में तो ये एसपी गुप्ता केस का ये डिसीजन है, यानी कन्वेंशंस को छोड़ा जा सकता है. कन्वेंशंस को टाइड रखने की जरूरत नहीं है कि हमें किसी भी हालत में फॉलो करना है. ठीक है, तो हियर यू राइट एनी कन्वेंशन which is against constitutional principles cannot be accepted as constitutional convention. For example, the Convention of Triple Talaq under Muslim personal law cannot be considered as, is not considered as personal law.
is not considered as constitutional convention या constitutionally valid principle. This is not a part of a judgment in this case. I am just explaining the meaning. ठीक है? तो conventions which are not in sync with the principles are not constitutional conventions. So some conventions are considered as part and parcel of the constitution and some are not. Yes. Related to the consultation of president with the क्या? this particular case is related to the Supreme Court president consultation with the Supreme Court in appointment of judges. अभी हम जजेस के केस से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कन्वेंशन पे क्या उनका पोजीशन है वो बता रहे हैं. तो एक कन्वेंशन ये था कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ जजेस. इफ प्रेसिडेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग द एडवाइस, तो कॉन्स्टिट्यूशन डजंट से दैट दिस बिकम्स अ बेसिस फॉर सम impeachment or something against the president. Yeah, is he not? Nothing will happen if government does not accept the recommendations. Till collegium system was there, so abhi tak convention was that senior most judge will be the CJI, but government has broken the convention. ठीक है, तो you can't say that government act is not constitutional. ठीक है, तब नहीं कह सकते थे, लेकिन कह सकते हो. अब ये सब तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को, हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आइदर बाय द रिटन लेटर और बाय द स्पिरिट ऑल्सो. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कन्वेंशन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. Constitutional morality says that when you are in power, you get lot of scope to misuse. तो issue ये है कि ultimately what is a check? ठीक है, who will judge the judge? तो ultimately only judge can judge himself. भाई आपके ऊपर ultimate check आपका ही हो सकता है. ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा. कॉन्स्टिट्यूशन कैन क्रिएट हाउ मेनी चेक्स एंड बैलेंसेस. ठीक है, अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. मीन्स पर्सन्स होल्डिंग द पोजिशन ऑफ पावर, दे एक्ट विथ सेल्फ रिस्ट्रेन and do not misuse their position. ठीक है, so that is not convention, that has nothing to do with this. Okay. Conventions are, many conventions are there, but which are permissible, which are basically, you, if you want to understand convention and constitutional convention. Fine. So what is permissible? What is the theory? No constitution can be entirely written. Fine. So what you require? Conventions. Conventions will add to the meaning and will bring clarity. एक constitutional, to understand a constitutional provision, courts have to understand the conventions also. Okay, so this become constitutional convention. Constitutional convention will be the part of legally enforceable order, and they are going to complement the part which is not written, because you can't write everything in detail, so you have to follow the convention. तो जो कुछ convention है
या कुछ ट्रेडिशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल टच टेस्ट को पास नहीं करेंगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो परमिसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो एक कन्वेंशन था दैट अ वुमेन ऑफ पर्टिकुलर एज विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेम्पल, तो ये एक कन्वेंशन है, फाइन। तो इज दिस कन्वेंशन राइट एंड रॉन्ग, इज इट अ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट और जुडिशरी? तो अकॉर्डिंग टू जुडिशरी it does not fulfill the test of constitutional principles of gender equality. So this will not stand. There will not be a validity of any such tradition. Fine. So if government goes and brings such law which ends this, that remain valid. वो उस सेंस में है। Got it? अब हम आगे चलते हैं, ये वाला हो गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। अब एक सेकेंड केस लिखो, सेकेंड जजेस केस। इसका जजमेंट यही है कि some conventions which are not according to the principle, you have written that. नहीं, एसपी गुप्ता का जजमेंट हमें अपॉइंटमेंट पे थोड़ी लिखना है यहाँ पे, ठीक है, हमें कन्वेंशन के बारे में बताने के लिए लिखना है, तो इतना ही लिखना है। ओके, नाउ राइट सेकेंड जजेस केस। Second judge's case, the name is Supreme Court Advocates on Record versus Union of India case. Supreme Court Advocates on Record versus Union of India case, 1993. इसमें पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा है, इफ एनी कन्वेंशन इज एग्जिस्टिंग एंड ऑपरेटिंग it becomes the part of constitutional law. Therefore binding. Okay, so can you define a convention on the basis it is legally enforceable or not? Is this a sound basis or written unwritten? Written. ठीक है, इसी in the same judgment it said that if any convention has served well within the boundaries of the Constitution, there is no reason to discard it. There is no reason to discard the convention. लिखो राइट। अगर हम मतलब इसका नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कन्वेंशन ऑफ अपॉइंटिंग the senior most judge was contributing to judicial independence, comma, there is no valid reason
to discard it. ठीक है, अंडरलाइन करो वैलिड रीजन. समझ लो, मतलब गवर्नमेंट वैलिड रीजन क्या दे रहा था? गवर्नमेंट कह रहा था मेरिट शुड बी द क्राइटेरिया, नॉट सीनियोरिटी. तो वो भी एक वैलिड है, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं है, तो जबरदस्ती कन्वेंशंस ब्रेक नहीं करा जाएगा. नेक्स्ट केस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट you can just for your clarity, state of Rajasthan versus Union of India case. The case important nahi, lekin what they said is good for clarity, right? Constitutional conventions which are so much attached to the constitutional provision that they become essential to understand, become essential to understand the true function of the provision cannot be seen apart of the Constitution. Apart, different, away. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना और कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का पार्ट है, अनरिटन है, लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं भी है, बट सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो या दैट्स अ पोजीशन. सो वी डू हैव a substantial amount of unwritten as well as written constitution. Now the third way of differentiating the constitutions is rigid or flexible. ठीक है, now देखो, right, another way of classifying the constitutions is, pardon, that was not mentioned because that's a very general type of case. तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो, इससे अब इतना जरूरत नहीं थी. में the rigid constitution and flexible constitution. ठीक है, तो लिखो, राइट, द क्राइटेरिया to distinguish the constitutions is on the basis of the nature of process of amendment. ठीक है, अब लिखो, राइट, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस are easy to amend. Underline easy to amend. It means they do not require any difficult procedure
for amendment. लिखो right. On the other hand, rigid constitutions will have not so easy way of amendments. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. Ordinarily unwritten constitutions are flexible constitutions because, आप ये बिकॉज ज्यादा याद रखना होता है प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, लॉजिक पता होने चाहिए हर चीज के लिए. क्या है वाई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर फ्लेक्सिबल बिकॉज, नहीं, नॉट रिटन एट वन प्लेस. हाँ, बिकॉज लिखो राइट, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन, जो तुम लोग कह रहे हो वो भी ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ. अंडरलाइन करो ऑर्डिनरी लॉ, एरो करके लिखो. पास्ड बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी. अंडरलाइन करो, पास्ड बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, एरो करके लिखो. It means the procedure for amendment of the Constitution and making the ordinary law will be similar. तो अब फर्स्ट लाइन क्या लिखी थी, इसी में वेयर, क्या सिमिलर, प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट इज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लॉ. ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन लिखो. डज दैट मीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ वन एंड द सेम? प्रोसीजर सेम होने से कानून सेम नहीं. आंसर इज नो. ठीक है, डज इट मीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ and ordinary law is one and the same in this case? Answer is no, because the function of A लिखो, constitutional law is, A लिखो, function of constitutional law is क्या? To give the general principles or foundational principles. Foundational principles. Okay. और B लिखो, ordinary law.
लिखो राइट, इट इज मेंट फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन and has to be day to day administration and has to be according to the constitutional law. Is it clear? वो प्रिंसिपल है. तो अब इसमें लिखो एक और, इसमें लिखो राइट, thus constitutional law is a fundamental law governing other laws. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विल बी द फंडामेंटल लॉ. पर्पस अलग अलग है, तो इसका एक और लिखते हैं. देखो राइट, दस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अ प्राइमरी लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ इज सेकेंडरी लॉ. You want to see from Indian Constitution the example. अगर हम एग्जाम्पल फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लें तो क्या हो सकता है, जैसे पहले सुन लो. फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल 3 है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स. स्टेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी. But any such bill that deals with formation of states, will it be treated as ordinary law or a constitutional law? Constitutional law. Ordinary किसको लगा? अरे बताओ, अगर नहीं तो क्लैरिटी नहीं आएगी. ठीक है, अब फिर से समझ लो इसको. I am saying flexible constitutions versus rigid constitutions. Flexible constitutions can be easily changeable. Means you don't have to take much headache. You have simple majority, you can do it. Fine. So they can be easily changeable. Easily changeable means special majority is not required and constitution amendment bill can be passed in the similar way like ordinary bill. Is the bill same? ये अमेंडमेंट बिल है और ये ऑर्डिनरी बिल है. सेम क्या है? प्रोसीजर ऑफ पासिंग द बिल. प्रोसीजर हमने आसान अडॉप्ट कर ली. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. फाइन. नाउ Article 3 of the Constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विल बी अ प्राइमरी, मतलब इससे जो लॉ बनेगा वो प्राइमरी लॉ है और इससे जो लॉ बनेगा वो सेकेंडरी लॉ है. यानी इसकी फंक्शनिंग को ये स्मूथ करेगा. ठीक है. तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, it is a constitution amendment bill. ठीक है. Is it a ordinary bill? Is it passed by ordinary procedure? Ordinary procedure and ordinary bill is same thing? नहीं. ठीक है. यानी ये वो अमेंडमेंट है जिसके लिए
सिंपल मेजॉरिटी लगती है, यानी जैसे एक ऑर्डिनरी बिल पास होगा तो इट इज अ अमेंडमेंट विच कैन बी पास लाइक एन एनी टॉम डिक हैरी बिल, ठीक है। लेकिन ये सेम तो नहीं हुआ, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। अब जब न्यू स्टेट बना तो उसके लिए सप्लीमेंट्री प्रोविजन करने होते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन करने होते हैं। वो कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 4 में। सप्लीमेंट्री कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस आर व्हाट? यू चेंज द सीट्स इन लोकसभा, इन राज्यसभा, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वो कौन सा लॉ हो गया? सेकेंडरी लॉ। वो ऑर्डिनरी लॉ है, ठीक है, जो इसके लिए चाहिए। ये प्राइमरी लॉ है, इसके लिए कुछ चेंजेस करने होंगे, वो सेकेंडरी लॉ हो गया। सीट भी नहीं चेंज करनी होगी, मान लो उतनी सीट में से आधी इनको दे देंगे, आधी उनको दे देंगे, ठीक है, बट लॉ से देंगे, वरना तेलंगाना वाले बोलेंगे हमारी सीट ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन वो सेकेंडरी लॉ था, उसकी जरूरत नहीं पड़ती जब तक ये लॉ नहीं आता। तो ये क्या है? ये अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। अब बेस्ट तरीका क्या है इस चीज को समझने का? इन केस ऑफ इंडिया, कैन देयर बी अ जॉइंट सिटिंग ऑन मनी बिल, जॉइंट सिटिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? नो, नो, ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, अ बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कैन देयर बी अ जॉइंट सिटिंग? नो. Reason is it is not a ordinary bill, it is a amendment bill. Amendment bill does what? Basic foundation, foundational principle बनाता है, और ordinary bill day to day administration. ये तो आया समझ में, ठीक है। तो लेकिन यहां हम आए कहां से? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑर्डिनरली आर द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी चेंज्ड और अमेंडेड very easily, the way they can be, the way ordinary law is passed. But is this the same thing? No. For example, in Britain, there is a constitution reform bill that had created Supreme Court of Britain. Was it an ordinary bill? But it was passed by constitution, passed by parliament. So in the countries where there is a unwritten constitution, and it means that is run by only by moral checks, fine, so there are no constitutional check as such on power of parliament. So in a countries with the flexible constitution or unwritten constitution, the principle of parliamentary sovereignty exists, fine. But in India, does it exist? It doesn't exist, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कल, अभी के लिए रखो होमवर्क। कल किया था तुमने भारत माता वाला, क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। कल का होमवर्क लिखना है, पहले पता करना है how many amendments of the constitution have been so far. और कल लक्ष्मीकांत की बुक से, ठीक है, you will read the procedure of amendment of Indian Constitution. प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हर के पास एक एक कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है।
अगर उस बुक पढ़ने के बाद कंफ्यूजन नहीं तो गड़बड़। ठीक है, हर इंसान एक कंफ्यूजन के साथ आएगा। और दूसरा और पढ़ के आओगे बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें 2 कंफ्यूजन, 3 कंफ्यूजन्स लाने हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फ्रॉम लक्ष्मीकांत, उसको बस मुझे ये बताना है कि तुम्हें ये नहीं समझ आया। एक और लिखो होमवर्क, देखो राइट, कॉपी में होना चाहिए PYQ ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर टॉपिक। ठीक है, ठीक है। तो आज किसी को पकड़ के कन्वेंशन खेलो जाके उससे, है? हाँ, अगर खेलोगे ना साथ वाले से जाके तो तुम्हारा क्लैरिटी आएगा, उसका कंफ्यूजन बनेगा और तुम्हारा कंपटीशन का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। 1-2 विकेट तो ऐसे गिर जाएंगे अंडर कॉन्फिडेंस से।